this show is a very good example of how difficult it is to legally prove rape. ठीक है, लीगली प्रूव हरासमेंट बड़े आराम से ना ये सारे जो हैं मिसोजिनिस्ट माइंड के लोग, ठीक है ना, सारा साल स्पेशली यहाँ पर ये इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है, सारे सिचुएशंस में वो कहेंगे जज बेकार हैं, जुडिशरी बेकार है, लीगल सिस्टम बेकार है, कोर्ट से दूर रहो, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है ना. जैसे ही कोई हरासमेंट का एलिगेशन लगा देगा उनको लगेगा ओ कोर्ट्स आर द बीकन ऑफ, एकदम सही है, ठीक है, जाके प्रूव करके दिखा दो तो हम मान जाएंगे. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the 3 AM Call, a podcast where two girls from opposite ends of the Indo-Pak border bring to you conversations about the female perspective and the female experience and share with you their experiences, their vulnerabilities, opinion, rants, etc., etc., etc. I am Rafia Jafar and with me is Ashima Jain and we are your hosts for this podcast. हो गए तुम्हारे सारे माइम एक्शंस इतने दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहे हो कॉन्स्टेंटली शुरू से. तो मैं क्या करूँ खाली खाली ऐसे जब तुम बोल रहे हो तो मुझे भी आई नीड समथिंग टू डू ना. Okay, sure. Let's start the podcast. So recently we have watched the Netflix show नाम क्या था, Anatomy of a Scandal. Okay, and we loved the show and we think that it starts important conversations about consent, which we also need to have. So should I kind of recap the we need a recap show of the whole and what it's series. about? Okay. So Anatomy of a Scandal is about this it is a British show set in London where this the male lead, actually the antagonist, is a minister in the government, okay, and he is involved in a scandal where he has an affair with a much younger girl in his office who then also accuses him of rape. And the show is mainly based around the trial that takes place, his rape trial. And this we have this very interesting situation where, you know, usually हमारे पास मीडिया में जो रेप वगैरह एटलीस्ट बॉलीवुड और यहाँ पर जो भी पाकिस्तान में जो भी रिप्रेजेंटेशन है, द रिप्रेजेंटेशन इज दैट देयर इज दिस unknown stranger male who is like very beastly and he commits this act on this very very poor victim, innocent virgin woman, and yeah, you know, it just rocks everybody's lives and, you know, her life is destroyed and all kinds of that trauma. Not to minimize any the trauma surrounding rape, but we know that a lot of rape happens in situations where the victim knows the perpetrator, and this situation specifically because they were already having an affair, and then the particular incident in question, the girl alleges that there is no consent in that situation. So the conversation obviously थोड़ा सा sensational भी है उसके अंदर. There are these twists, a little bit of a twist that comes, but the biggest thing we see in this show is male entitlement. You know, the man is a white male, blindness to male privilege or any and it's just not privilege in male general. privilege, it is white Any male privilege. of sufficient means, rich privilege, like all kinds of privilege that man has. He is white, he is rich, he is very politically powerful, and then he has certain kind of social standing in the society कि अच्छा हाँ, he's a married man, he's happily married, he's a family man, 2 बच्चे हैं उसके, he's a responsible family man. तो he has all the right tags, like all the tags are favoring him. एंड उसके बाद ऐसी स्टोरी निकल के आना. ऑल्सो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई. और भी सीरीज और मूवीज ऐसी होंगी, बट आई कांट थिंक ऑफ एनी सीरीज जहाँ पे ये जो लाइन है ना कॉन्सेंट की, इट्स वेरी थिन. क्योंकि यूजली जो मेरे दिमाग में सीरीज और मूवीज आ रही ना, उसमें होता है कि द परपेट्रेटर इज अननोन, ठीक है, बट इसमें इन दोनों का ऑलरेडी एक अफेयर चल रहा है. तो उसके बाद वाई कॉन्सेंट इज इम्पॉर्टेंट, that issue is raised, which I think is very 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 important, because जैसे अपने से कंट्रीज में तो मैरिटल रेप भी इलीगल नहीं है, and I don't think we have enough representation of that. होगा तो सही, but I don't think मेरे दिमाग में कोई आ रहा है
होंगी ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज भी होपफुली, हाँ, बट लेकिन हाँ, आई थिंक ये जो दिस लाइन इज वेरी थिन दैट यू नो हु इज योर परपेट्रेटर, एंड उसके बाद भी वाई कंसेंट इज इम्पोर्टेंट. yeah. This it has raised a very important and we point. see इस तरीके how से. मतलब इस शो में सबसे ज़्यादा starkly you see the male perspective as to how blind he is. हाँ, मतलब उसे ये लगता है कि last अगर कोई में लड़की उससे टकरा भी गई है और उससे उसको स्माइल करके देख लिया है या किसी ने उसे एक बार किस कर दिया है, तो दैट मीन्स कि अच्छा कंसेंट है, he just doesn't bother. उसको There is no, last and तक then भी he's so समझ नहीं surprised आता. when somebody alleges rape. हाँ, उसको लास्ट तक कि, उसको oh, सीरीज really? के लास्ट तक भी नहीं समझ में आता दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. पूरी सीरीज में ही इज नॉट एक्टिंग, ही इज, उसको समझ ही नहीं रहा है गलत क्या हुआ है. उसको लास्ट में लगता है कि अभी तक भी तो मैंने कुछ गलत तो क्या ही किया है, मतलब ऐसा ही तो I mean, he होता है. has an affair, which is clearly wrong. ठीक है ना, रेप में तो चलो उसको समझ नहीं आ रहा. I mean, I'm not justifying it, but he's so blind. तो रेप में तो उसे कंसेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा कि अच्छा ये this person has slept with me and she's kissed me, तो फिर obviously I can go हाँ, all the way वही, with whatever. ठीक वही है, प्रॉब्लम बट थी उसे तो because ये भी समझ नहीं आता कि अगर मैंने अफेयर किया है तो ही इज नॉट इवन अपोलोजेटिक अबाउट इट. ही इज लाइक हाँ हो गया, सॉरी भाई, सो व्हाट. वही, और वो Like- जो अपनी जिसके साथ उसका अफेयर होता है ना, वो उसको भी उसी लाइट से देख रहा होता है. एक होता है ना कि आपके दिमाग में सबकी एक इमेज होती है, तो उसके दिमाग में, उस आदमी के दिमाग में, द लड़की इज ऑलरेडी लूज. शी ऑलरेडी हैज लूज कैरेक्टर बिकॉज शी हैज एन अफेयर विद हिम एट द फर्स्ट प्लेस. अगर अच्छी औरत होगी, शी वोंट डू दैट. वो तो किसी मैरिड आदमी के साथ अपने ऑफिस सेटिंग में अफेयर करेगी नहीं ना. तो शी हैज ऑलरेडी पास्ड वो वाला टेस्ट कि वो तो लूज कैरेक्टर तो है ही उसका, बिकॉज शी हैज एन अफेयर. तो उसके बाद तो वो कोई कुछ भी करे उसके साथ, ही ऑलरेडी हैज एन अपर हैंड ना पूरी उस डायनेमिक में. एंड ऑल्सो ये डायनेमिक में कितना ट्रिकी होता है कि जो आपका अफेयर, ठीक है अफेयर है कुछ भी है, उसमें जो एक होता है ही इज इन अ पावरफुल पोजिशन, कंपेयर टू यू. एंड देन इस रिलेशनशिप के डायनेमिक में जब वो पावरफुल Yeah, पोजिशन the वाला power dynamics, आदमी होता है, yes. इफ ही इज अ मेल, फिर तो पूरा जो डायनेमिक है वो तो पता ही है किसके फेवर में ज्यादा जाता है. तो इस केस में भी वो ही इज अ because- मेल एंड देन ही इज एन गवर्न, क्या होता है वो, उसका पॉलिटिकल पोजीशन क्या minister होता है? होता है. मिनिस्टर होता है. मिनिस्टर होता है. एंड शी इज जस्ट इन वो नहीं सेक्रेटरी तो नहीं होती है वो, कुछ शी इज जस्ट अ रिसर्चर, मतलब एक स्टार्टिंग से पोजीशन पे होती है वो. पोजीशन पे होती है. हाँ, ट्रू. या और वैसे ही सेइंग नो, वी ऑलरेडी नो. आई मीन देयर आर, आई थिंक दिस हैज बीन टॉक्ड अबाउट, या दिस थिंग इज, अब इसके बारे में बात होना शुरू हो गई है, दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट व्हेन वुमेन हैव सेड येस, दैट हैज बीन इन कोएर्जन. बिकॉज और ये औरतों पे ये प्रेशर बहुत होता है कि यू नो, जैसे वो उसको बोलते हैं ना, डोंट बी अ प्रिक्टीज. ठीक है, तो ये प्रेशर बहुत होता है कि इफ यू हैव टॉक्ड, और इफ यू हैव टॉक्ड एंड इफ यू हैव यू नो स्माइल्ड, और इफ यू हैव यू नो किस, तो इट इज योर फॉल्ट. यू ऑलरेडी गिवन हिम द सिग्नल. नाउ इफ यू से नो, you are the wrong one. So this pressure that they carry, that oh, if I don't say yes, I am the wrong one, or I have led him on, or I have no right to now withdraw my consent. ये तो मेरे को अपने साथ भी होता है ना, अगर जैसे वी हैव, तो ये तो नॉर्मल सिचुएशंस में भी होता है. फिर वो पावर डायनामिक ऐड कर दो when he is your boss, तो यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. इट बिकम्स इवन अ मोर अनकंफर्टेबल सिचुएशन. जब अपने साथ ही हो जाता है, मतलब वी नो कि अगर कोई आपके साथ, इफ somebody is shadowifying you, if somebody is doing something wrong, तो we know that we are not wrong, but लेकिन फिर भी unconsciously अपने आप क्वेश्चन कर लेते हैं. अपन सड़क पे चल रहे हैं, ईव टीजिंग हो जाती है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में, बिकॉज यू कैन ओनली क्वेश्चन योर सेल्फ उस टाइम पे, यू कैन नॉट गो, उससे तो पूछ नहीं सकते अपन. तो अपन सबसे पहले अपना ऑर्गेनिक रिएक्शन ये होता है कि अपन खुद को क्वेश्चन करें. तो वी डू दैट ना कि अच्छा क्या अपन ने कुछ करा, कि मैंने पहन क्या रखा है. वी नो दीज थिंग्स डोंट मैटर, वी नो दैट, बट स्टिल वी हैव अ टेंडेंसी टू आस्क दीज क्वेश्चंस, बिकॉज हमारी भी कंडीशनिंग इसी एनवायरनमेंट में हुई है, पर हमारी पूरी बॉडीज जो हैं सेक्सुअलाइज्ड हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ओ माय गॉड, probably I shouldn't have worn this here. This, right? Probably or the next time you go to that same place, you will change the way you dress. Probably, to be like more comfortable. And it is about making
वो दो स्मॉल चेंजेस ना कि अच्छा ठीक है उस टाइम पे हम लोग नहीं जाएंगे, रात के टाइम पे नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो चीजें अपने हाथ में अपन वही चेंज कर सकते हैं, एंड वी एंड अप डूइंग दैट ओनली. और ये तो सब ये तो आई एम श्योर ये तो सबने एक्सपीरियंस करा हुआ होगा. एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट वो प्रिक्टीज वाला, बिकॉज दिस हार्ड टू गेट वाली चीज भी तो ग्लोरीफाई करी गई है ना, कि अगर लड़की आसानी से मान जाए तो मतलब फिर तो कोई थ्रिल ही नहीं है, चेज होनी चाहिए. एंड कोई भी अच्छी लड़की आसानी से नहीं मानती है, एंड द मोर यू विल परस्यू हर द बेटर शी विल फील. So The- no the means better कि she please will come feel. after me more. I just can't say yes. हाँ, in one thanks to time. Bollywood and a lot of other representation also कि नहीं लड़की enjoy करती है. वो DDLJ थी इसके, अच्छा ठीक है उसकी ब्रा उसके मुंह पे उस पे वो कर रहा है, उसके दिखा रहा है उसको, और पता नहीं उसके पीछे फिर उसको स्टॉक कर रहा है. दैट इज गुड थिंग. और फिर में लास्ट में लड़की पट भी जाती है ना. So playing hard to get is a हमेशा thing. पटी जाती है because हमेशा पटी जाती the है. message these movies are always giving is, oh, if she's saying no, that just means you have to try harder, and that try harder isn't कि अच्छा भाई ठीक है I'm around you, I'm there as a friend, so I'm just there without expectations कि अगर this opportunity नहीं. arises or if you want to, they're not around in a respectful way, giving your space and hoping for an opportunity if it arises to take it respectfully. ठीक है कि maybe we grow more closer and she starts seeing me differently. नहीं, this is not there. You have to be around in a very harasser way. ठीक है, जैसे DDLJ की बात की तो यू लुक एट दैट सॉन्ग रुक जाओ दिल दीवाने. ठीक है, पूरा हरासमेंट कर रहा है वो. इतना मशहूर गाना है, बचपन से सारे गा गा के मैं बड़ी हुई हूँ. मैंने कितनी बार उसकी वीडियो देखी है खुद भी. इट्स नॉट लाइक मैंने देख के बोला अरे ये क्या कर रहा है. बट वो इतनी एक एक्सेप्टेबल चीज है. बट नाउ इफ यू लुक एट इट विद दिस न्यू पर्सपेक्टिव, हाँ पूरा रोमांटिसाइज, द होल हरासमेंट इज रोमांटिसाइज्ड, वेयर ही इज यू नो पब्लिक में उसको एम्बैरेस कर रहा है, जाके उसे टच कर रहा है, यूं पकड़ के उसे गिरा रहा है, सब कर रहा है. बट ही इज द हीरो एंड ही इज नॉट जस्ट एनी हीरो, ही इज शाहरुख खान. और उस मूवी का शाहरुख खान जिसका पोस्टर जो है स्विट्जरलैंड में लगा हुआ है, स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में. This is how big this movie is, and what he is doing is harassment, and we have all accepted it as the greatest romantic movie ever made. True. और पता है मुझे इससे एक और मूवी याद आ रही है. तुमने ए दिल मुश्किल तो अवश्य देख ही रखी होगी. तो उसमें वो कोई हरासमेंट वगैरह तो नहीं करता है, वो वैसे हरासर तो नहीं होता, बट लेकिन उसमें ना मुझे एक चीज़ बहुत मुझे हंसी आई थी उस चीज़ से. वो उसके पीछे पड़ा रहता, जब चली जाती है वो बात करने बंद हो जाते, फिर बाद में वापस रिकनेक्ट होते, तो उसको पता चलता है उसके पास उसको कैंसर है. ठीक है, देन ही स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ हर, तो दे कम क्लोजर टुगेदर. तो वो तो इसी होप में होता है कि अच्छा अब हम लोग वी आर क्लोजर देन बिफोर, तो क्या पता अब कुछ हो जाए. देन ही ट्राइज किसिंग हर अगेन. वो फिर समझाती है कि भाई तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ना हो पाएगा, दोस्ती हैं अपन. लेकिन स्टिल उसको लगता है ना. बट he doesn't he get mad or something? मैंने बहुत पहले देखी थी that she says no at the end. नहीं मतलब he is still there as a friend, but लेकिन वो he tries kissing her जब उसका पूरा ये इसको कहते हैं this nice guy myth. There is this conversation now about this nice guy myth where there are so many nice guys who complain that oh these girls just have us around और हम इनके काम करते रहते हैं, और जब डेट करने की बारी आती है तो वो हमें डेट नहीं करती. एंड the replies to that I have noticed is now कि भाई जब you ask her, if she says no and then you're still hanging around doing stuff for her and not saying no to her, it's on you. You know she has said no to you. True. She has मतलब just because you're doing stuff for her, she doesn't owe you anything. अपनी मर्जी से कर And if you think she owes you anything, then the problem is you. This is the nice guy myth. You're acting like a nice guy, but you're doing all these things expecting something. जो हमने वो show देखा था Netflix का Maid, जिसमें you don't like that what is that character, that Indian man जो उसमें होता है. Remember Maid where she runs away from her abusive husband. हेल्प कर दिए तो उसको she owes him everything. कि अच्छा बहुत ही ऐसे like she was a damsel in distress and then he came and then he saved her. So now she owes him a relationship. And when she goes sleeps with her ex, he throws her out of her house. कि भाई I can't babysit your kid while you go, you know, but you had no sleep with your ex. लेकिन the thing is, as a friend, who the hell are you to police her life?
एज अ फ्रेंड बोलता कि बहन क्या कर रही, वापस एक्स के पास चली गई, दिमाग नहीं आएगा तेरे पास, एज अ फ्रेंड बोलता तो हाँ. समझ में आता, बट लेकिन he threw her out not But he because he was wasn't saying this concerned as a as a friend, that was because his ego was bruised कि अच्छा मेरे घर में रह रही है, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, she owes me anything, but नहीं, ये तो जाके उसके साथ सो गई, तो उसकी ईगो हर्ट हो गई है, इसलिए ही throws her out. और ये not नहीं है कि because he's okay, you know, genuinely concerned about her. ये नहीं है कि okay, you can't just go around while I'm taking care of your kids, their responsibility. हाँ. अगर ऐसा है तो just say कि भाई I can't babysit your kids, whatever. No, I can't babysit your kids while you go sleep with your ex. So okay, Because he was- the problem isn't you are he was- okay babysitting the kids हाँ. as long as she's under this pressure of owing you something. And until and unless she is doing the right thing according to your standards, because he had no problem हाँ. babysitting when she went to her work, तब तो उसको प्रॉब्लम नहीं थी ना, उसको प्रॉब्लम तो यही थी. तो अगर वो जेन्युइनली कंसर्न्ड होता कि हैशटैग रॉन्ग लाइफ डिसीजंस, तो मुझे लगता है कि हाँ कंसर्न्ड है, बट लेकिन वो उस केस में ही वाज नॉट कंसर्न्ड, ही वाज, हिज ईगो वाज ब्रूज्ड. It's because कि why he's not expecting me? her to eventually come around and you know get in a relationship with him, and when he sees कि oh that might not happen, he's just goes it back. This is the nice guy myth. He's not True. a nice guy. He's doing Nice things guy, because true. he expects something in return, and when he doesn't get it, despite her situation, he throws her out. ऑल्सो बट अभी अपन इसके बारे में बात करते हैं, आई वुड वांट टू से दिस, यार वो बंदी लेकिन कितनी उसका कैरेक्टर, शी इज सो स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट. पता है एक टाइम में जब तक इसकी ये मिथ बर्स्ट नहीं होती ना, उसकी नाइस मैन मिथ बर्स्ट नहीं होती, मैं भी सोच रही होती हूँ अच्छा बंदा तो है, इसको क्यों पसंद नहीं आ रहा. मतलब मैं तो बस देख रही हूँ, आई एम जस्ट अ व्यूअर, फिर भी मैं सोच रही होती, बट मैं उस लड़की का सोच रही थी, द कैरेक्टर विच हैज बीन शोन, शी इज सो स्ट्रॉन्ग, शी डिडंट फॉल इनटू द ट्रैप, शी डिडंट फॉल, मतलब कि मैं भी एक तरफ बार बार सोच रही थी अच्छा बंदा तो है, लाइफ वुड बी इजियर, व्हाई नॉट, मतलब एक बार मैं भी सोच ली थी, बट लेकिन शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग और कैरेक्टर. उसमें वो वाला पार्ट होता है ना, what I like about her strength is उसके बाद वो वाला पार्ट होता है ना where she goes back to her husband होता है, fiance होता है कौन, ठीक है, and then वो again abusive होना शुरू हो जाता है, and like they show her like she's in this hole where she cannot you know connect to the world at all. तो I actually मतलब I haven't been through this crap, but I understand that hopeless situation where you feel कि एक बार मैं fail हो गई, ठीक है, in trying to do this, in trying to get out of this cycle, so you lose this hope. और वो बहुत ही मुश्किल जगह होती है where you lose hope, because then it's you yourself has surrendered to whatever this bad cycle pattern is. और उसमें से वो बाहर आ जाती है the second time. True. ठीक है, even That though is you true know resilience. she knows she is the one who fucked up, she knows she is the one who fucked up, she knows that उससे वो गलती हो गई और दोबारा she herself walked into that trap. उसमें से दोबारा बाहर निकलना, वापस आना, दोबारा ये true. कोशिश करना with the risk, knowing the risk that there With are a so small many women daughter, who with a go so young many daughter. times back. And with a young daughter, ये And भी with नहीं such कि a you're young daughter, alone. and she has no money, she has And वो खुद भी basically no कितनी young parental होती support, है. her father is an asshole, her mother is a mental patient, she has nothing. Nothing. And She a has young child nothing. to take care of. खुद और भी बच्ची उसमें होती फिर है, भी वो she's उसमें से जाके herself a दोबारा young निकलती है. child. Oh. She's herself a young child. उसके बाद भी निकल Yeah, जाती she's है. so young. और उसका वो Yeah. सीन, आई रिमेम्बर That दैट is सीन amazing. बहुत स्टार्कली, जब वो सोफे पे होती है, वो सोफे के अंदर घुस जाती है, the back. It was symbolic है वो scene. Powerful scene. And it's not sensational. The show isn't sensational in that Sensational. sense. बहुत कि भाई, slow oh है. भाई, power and girl boss and you know all that work bullshit. Okay, we have to It go is back really to a very Anatomy quiet of kind Scandal. of strength. Yeah. We have to go back to Anatomy of Scandal. We have to go back to the conversation of consent One and the thing, problems surrounding it. not conversation of but we have to talk about consent. But one more thing I liked about the show was, after having been through a trauma like that, it is very important to get the right kind of support after, because you cannot leave these traumatic incidents behind, because ये आपकी personality shape करते हैं, और how do you move forward in life, बहुत चीज़ें affect करते हैं, आपकी relationships affect करता है, ठीक है, तो it is very difficult to leave that trauma behind. तो जो उसकी personality है ना केट की, I think under the personality काफी subtly दिखाया है, but under the personality you can see that how that trauma has shaped her, because she is also, उसको भी commitment issues होते हैं, okay, and then she is this person who is
ऑलवेज लाइक अपने प्रोफेशनल बबल में अकेले काम करती रहती है, तो ये काफी वर्कहोलिक, नॉट हैविंग टू डील विद हरसेल्फ और लाइफ एट ऑल. तो आई थिंक अगर इसको देखा जाए तो दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट ट्रॉमा. उसका जो इतना बड़ा ट्रॉमा था, शी हैज नॉट टॉक्ड अबाउट इट. उसने कोई प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प नहीं सीख करी होती, उसने ज्यादा लोगों को बताया भी नहीं होता, उसके बस एक फ्रेंड को पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता. And she also makes the mistake then. Yeah, she also makes the mistake of taking the case because she is. Because not only is that, you know, because that trauma has not been addressed properly. वो closure तो मैं closure is not the right word, but still I want to say कि वो closure तो आपको कभी मिलेगा भी नहीं. वो resolve नहीं किया उसने emotional level पे जो इतने सारी है ना. हाँ, तो वो ये trauma बहुत अलग अलग चीजों में manifest होता है, and आपको खुद को भी पता नहीं चलता क्यों, मतलब कि why am I doing certain things. और उसके साथ भी यही होता है. क्या पता अगर उसने पहले इस चीज़ के बारे में बात करी होती, किसी से उसने किसी तरह की हेल्प सीख करी होती, तो वो ऐसी गलती नहीं करती कि वो केस लेती. It was a mistake on her part. तो क्या पता ऐसा नहीं होता. Because not only was it selfish of her in the sense के भाई she won't be, obviously if she is in that situation where obviously her emotions are charged and everything, she is not the best person to deal with the case, so she's compromising her client, she's compromising the case. ठीक है. But also ये तो चलो एक non professional way में हो गया ना, लेकिन वो अपना पूरा करियर, मतलब it's also legally, मतलब it's also unethical, and if it comes out, she has put her own entire career on stake online, because obviously she has not been able to think so clearly and sharply because of the trauma inside her, you know. True. Because she sees herself in Olivia, and then she doesn't kind of stop herself from making that mistake. और एक पॉइंट मुझे ये भी लगता है, आफ्टर वन पॉइंट अगर अपन केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो शी हैज रीच्ड अ पॉइंट इन अ करियर कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल करियर वुमन. तो इस टाइम पे ना व्हेन यू हैव रीच अ स्टेज लाइक दैट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक एंड टॉक अबाउट इट. कि एक तो खुद की ईगो भी ब्रूस हो जाती है कि हमारे साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है. You do not want to accept it in public कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, because when you are doing that, आप अपने आप you are telling it to everybody that yes, you were in a vulnerable position, and it's not even it is not just a vulnerable position, it's a very pathetic position to be in. You cannot talk about it, and especially when you are at a stage पे Kate थी. Even if you are young, immediately after भी it is very difficult for you to talk about it कि आप कैसे किसी को बता दो कि हमारे साथ कोई ऐसे करके चला गया. You cannot do that, and especially जब आपकी but वो personality बनाई ही, I think उसने, she has a very different personality when she is younger, right? She's not as closed off, she's not as, मतलब she's nice, she smiles, she's you know out there in the world, naive enough that her friend takes advantage of her and makes her do her homework, but then the 44-year-old Kate is so closed off, such like a cord. For a moment I thought naive enough किसी ने advantage ले लिया, उन्होंने कि क्या बोल रही है ये लड़की. नहीं. I know obviously. नहीं. No. Obviously I know that. मैं पता नहीं मुझे कि क्या बोल. नहीं. वो जो उसकी wife होती है उसका homework कर रही होती है. हाँ. And you know, तो फिर उसने वो personality बनाई ही इस हिसाब से है कि you know, if I am that naive and vulnerable and nice, I will be taken advantage of. So she just like shuts herself off. और उसकी personality जो 44-year-old की है, it is very you know cold and you know lawyer and you know very go-getter and career focused and doesn't care about emotions and doesn't care about relationships and all that kind of a thing. What do you think about the wife? उसका नाम क्या है, मैं तो भूल भी गई. Sophie नाम होता है ना कैरेक्टर का. Sophia whatever. What do you think about the wife's character? मतलब मुझे बहुत अनरियलिस्टिक सा लगा उसका कैरेक्टर. मतलब आई फाउंड हर टू बी वेरी अनरियलिस्टिक. जैसे कि मतलब उसको जब पता चलता है तो मतलब ठीक है, शी इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन द सेंस कि चलो ठीक है वो रियलाइज, मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं कहूँगी, मतलब उसको रियलाइजेशन होता है कि नहीं मेरे बच्चे हैं, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, तो आई कैन नॉट जस्ट लीव एवरीथिंग, आई कैन नॉट लीव हिम. तो
फर्स्ट डे से वो बहुत ही इतनी डिटरमाइंड होती है कि नहीं, आई हैव टू मेक दिस वर्क. उसका एक बार भी रिएक्शन नहीं निकलता कि अबे चूते तूने क्या कर दिया. मतलब एक बार भी ह्यूमन सा रिएक्शन नहीं निकलता उसका कि व्हाट डिड यू Yeah, डू. like even before the rape charges, there's no fight about the affair. हाँ, कि मतलब what she is the very- hell? Like there's no question mark on the marriage for even a second. हाँ, second, हाँ, मतलब she is very composed. मतलब she gathers herself too quickly. जानने के बाद भी मतलब हाँ, इसका एक बार तो उसको झटका लगता है, बट लेकिन वो इट पासिस, झटका पासिस वेरी क्विकली. तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मतलब ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन सा नहीं मेरी लगा मुझे. एनालिसिस उसके बारे में थोड़ी सी डिफरेंट है. आई थिंक कि बीइंग अ वाइट वुमन, शी इज अ वाइट वुमन हु इज ऑल्सो मतलब रिच, ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई, उसी सर्कल के Privileged, अराउंड, हैज अ वेरी नाइस लाइफ, एवरीथिंग ठीक है. तो आई थिंक शी इज काइंड ऑफ complicit in the system. She is complicit in her husband being that powerful, ठीक है, because college के दिनों से she has been like worshipping him, ठीक है. She has decided कि अच्छा इसी से शादी करनी है. She doesn't look at her flaws. जब वो आता है उसके पास रोता हुआ या जो भी, ठीक है, कि तो वो she is the one who kind of consoles him. प्रोटेक्ट मतलब इमोशनली उसे सपोर्ट करती है एक्सेट्रा, ठीक है. उसकी एलिबाई बन जाती है, उसके बिहाफ पे लाई करती है. एंड देन शी द स्टेशन एंड द लाइफ दैट शी हैज़, ठीक है, करंटली दैट इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड being who he is, because she is not working, right? And the life that she has and her husband has is dependent on that power that her husband has, ठीक है. तो आई थिंक उस मोमेंट में for her it's, I don't know, maybe it's less about forgiving her husband and more about this About life her. that she has for herself, जिसमें she is complicit in her husband's power and the advantages the husband's power affords her, ठीक है. True. So I it's not just very वो about oh my family और ये वो. There is this I mean they don't talk about it, but I feel कि this is one of the reasons she would stop herself from questioning him and thinking कि oh he had an affair, so maybe even before the rape allegations he had an affair. She should question him, you know, कि what about this marriage and what about the fact that she was so young, you know. लेकिन वो नहीं करती because she knows that if she asks too many questions तो उसकी जो ये सारी life है where she is of a certain stature and her lifestyle is a certain way and her children live a certain way, वो सब हिल जाएगा, मिल जाएगा. ठीक है. एंड इट इज़ वेरी बट स्टिल आई थिंक it is a very strong character and I don't hate her because slowly she does think about all those things, slowly she does question everything, slowly she starts seeing the entitlement. जब वो constantly बोल रहा होता है ना, we are, क्या नाम है उसका, last name क्या होता है, जेम्स व्हाइट हाउस, अपने बच्चों को भी यही बोल रहा होता है, we are the white houses. we are white houses, we get over everything, and it starts to make her so uncomfortable, and because it is uncomfortable where he is sharing his entitlement with the kids, saying कि oh you know हमारे सामने कुछ भी आ जाए, we can always defeat it, and she sees that this is not just like personal will and personal power. True. Yeah, this is the privilege that makes them, जो उसके हस्बैंड को मिली हुई होती है, उसके हस्बैंड को भी ऐसी पेरेंटिंग मिली हुई होती है कि हाँ बच्चे तो करते ही है ऐसा, आदमी लोग तो करते हैं, मोनोपोली में झूठ बोलेगा तभी तो सीखेगा. When he cheats, he's so smart. हाँ, तो she doesn't want कि उसके बच्चों को भी ऐसी पेरेंटिंग मिले. However, she starts to slowly realize the privilege that is, you know, made her husband whoever fuck he is. हाँ. Also this makes me think कि चलो ये तो इतनी privilege थी. She had money, she had a very good life, her kids were taken care of. चलो अगर ये देख ले कि सबसे पहले औरतों को यही टेंशन होती है कि what about her kids, what will they do, तो उसके बाद से सब कुछ था. And also she, अगर वो छोड़ के भी जाती तो she was independent enough to start a life on her own. पढ़ी लिखी तो थी ना. She had a job before. She was not working out of her own choice. If she would have wanted to, तो वो कर लेती. तो इतना सब कुछ ये सब होने के बाद भी she didn't leave her husband because she didn't want to leave that life. She was so used to that life. So think about women who don't have all of this.
how difficult it must be. That is why you just can't get out of a marriage like that, because इसके बाद जो सब कुछ था, सब कुछ होने के बाद भी she couldn't get herself out immediately. उसको धीरे धीरे realization हुआ. तो think about women who don't have all of this thing. तो अगर realization हो भी गया कि toxic marriage है, we need to get out of it, लेकिन if they get out of it, उसके बाद जाएंगी कहाँ? Because they have no place to go. Exactly. They do not have the right kind of education. They cannot step out And then immediately into the world and start earning for themselves. They don't know how to take care of their kids. They don't know the things to take care of their kids, क्योंकि इतनी independence तो कभी देखी ही नहीं है. So they don't know how to do a lot of things. तो दिस मेक्स मी थिंक कि सब कुछ होने के बाद भी, सब तरह के रिसोर्सेज होने के बाद भी, दिमाग होने के बाद भी, शी चोज नॉट टू लीव. और उसे इतनी एलिमनी भी मिलती बिकॉज उसका अफेयर तो पब्लिक रिकॉर्ड पे था, तो उसका हस्बैंड तो रिच भी था, तो उसके बाद फिर भी उसको छोड़ना. एंड देन यू इमेजिन अ सिचुएशन, ये जो क्वेश्चन, ये जो बहुत बोला जाता है ना कि ओ अगर हरासमेंट हुई थी तो बोला क्यों नहीं, और ओ अब ये बंदा अमीर हो गया है या पावरफुल है तो इसका करियर. तो भाई अगर एक इंसान, दिस गर्ल, शी इज नॉट इवन अ विक्टिम of a sexual of a sexual assault, ठीक है, she is the victim of her husband cheating on her, and actually not just cheating on her, going and raping somebody, emotionally and then manipulative, ये भी उसे याद आ जाता है कि वो पहले भी कर चुका है ये चीज़, ठीक है. तो so she is still a victim, ठीक है, but sexual assault की तो नहीं होती ना. she is still the person who was wronged. उसके साथ तो दुनिया भी sympathize करेगी, everything. And she still takes so much time. So when you are somebody against whom the world will not sympathize, because every person who talks about sexual assault is viewed कि अच्छा झूठ बोल रही होगी, complicit होगी, and then you are also a person who has to deal with your own issues of, oh my god, how did I let this happen to myself? Maybe it was my clothes, maybe I didn't say what I should have said, maybe I wasn't clear, maybe I led him on, all those kind of things. Yeah, oh, maybe I was just that weak that I was taken advantage of. Exactly. It is very difficult internal conflict के साथ deal करना, फिर external इतनी toxicity और इतनी blame से deal करना, और फिर obviously मतलब how do you expect somebody to just come out and say it, especially when it happens? मतलब लोग तो सालों तक नहीं बोलते. एंड this might be new, I don't know how, I don't think many boys watch this, but it might be news for you. There will be so many women in your houses who have dealt with shit, and you will go your life without knowing in ways that they were harassed. You will not know, because before we say it, हमारे तो घरों में भी यही थिंकिंग होती है ना कि अच्छा इधर हुआ, अच्छा किसी ने यूँ कर दिया, यहाँ अकेले मत जाओ, वहाँ क्यों गई थी. the restrictions are on us. हमारे कपड़े पुलिस होते हैं, हमारी geographical location पुलिस होती है. We always have to inform where we are. Okay, part of this is security, but how much can you let your life be policed, and how much can you, in the name of security or whatever, live after getting all these permissions? So we just don't say. And sometimes we don't say because we don't know what the reaction is going to be. True. Because you just cannot, एक आपके साथ already इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है, ठीक है, and then it's just not assault, it's not just rape, sometimes if you're touched in a wrong way, or sometimes if you're looked at in a wrong way, all those things can be very very harassment is harassment. कोई comparison नहीं कर सकते. Yeah, all that is trauma. Harassment की degree नहीं होती है. Everything you're already harassment. dealing with that trauma. And this risk that people who you feel can give you a safe space or can be your protectors, घर है आपका, family है, what if they do not react the way you need them to react? What if they ask you a question that you should not be asked? Like you should not be asked अच्छा क्या पहना था, या क्यों गई थी, या क्या था, या अगली बार मत जाना. Anything which, the slightest thing which can make you feel that okay, you were complicit. So also apart दूसरे कंट्रीज का तो मुझे पता नहीं. Men do not know what women have gone through. Women they grow up with, women who are their daughters, women who are their wives, they do not know. They live in this whole I would like to add a couple of things यहाँ पे, मतलब कि और ये जो रियलिटी है ना, it is also with the boys. लड़कों के साथ भी ऐसा होता है.
लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, हाँ, लड़कियों के साथ that ज्यादा is होता है, true. लड़कों के साथ भी ऐसा होता आई है. डोंट नो अबाउट ज्यादा बट आई नो कि होता है बहुत ज्यादा. हाँ ज्यादा लड़कियों के साथ ही होता है, बट लड़कों के साथ भी होता है. हाँ. ये एक तो That दिस is इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दूसरा कल्चर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन द देसी कल्चर वी हैव, अगर आपने अपने एक तो पहले तो ये फियर होता है कि घर वाले रिएक्ट कैसे करेंगे. घर वाले से मतलब योर इमीडिएट फैमिली, योर पेरेंट्स या सिबलिंग्स, यू डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट. ठीक है. दूसरी बात, अगर आपने बता भी दिया उनको and they are understanding the situation, there is no guarantee that they will also act upon it, because the kind of societies we live in, ठीक है, जो extended families होती है, सब फलाना, everybody is, I won't say close, but everybody shares some kind of formal relationship, जो भी कह लो. I don't even know how to describe that kind of relationship we It's have, a very but communal culture. It's a very communal collectivistic culture जहाँ पर होता है. community और रिश्तेदारियाँ and they're very at the They're very, basis you are of supposed your to entire respect life. these relationships. You are not supposed to answer back. You are supposed to follow them blindly. You cannot do anything. तो ऐसे situations में even if you go and tell your parents and they're understanding, there is no guarantee that your parents will do something about it. Because कहने को ये कह लो कि their hands are tied, कहने को कह लो कि they don't want to, they don't know how to. So there is no guarantee that they will resolve that trauma for you. कोई रिजोल्यूशन तो हो भी नहीं सकता, बट देयर इज नो गारंटी बताने के बाद भी दैट इवन They will take any kind of stand for you, you know. दे वर, चलो स्टैंड भी ले लिया, दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग, स्टैंड भी ले लिया. नहीं, in the sense के in front of your perpetrator, they will not necessarily take a stand for you. Not all They'll be, अच्छा families do बेटा अब that. हो गया, जाने दो, अगली बार बता देना, या पुरानी बात है, अब तो ये बड़ा, you know, especially like if you tell it after a lot of years, like अच्छा वो तो उस वक्त छोटा था और बेवकूफ था और अब तो वो बड़ा हो गया और तो और शादी हो गई, बच्चे हो गए, बीवी बच्चे वाला. I mean this family man, this बीवी बच्चे वाला bullshit. Like why are women and children of a horrible man, you know, used to wash him of all his crimes? बिकॉज औरतों की ड्यूटी होती है ना खराब मर्दों को सब वो सही करने की. हाँ, लेकिन औरतें सबको धो कर जो है ना वाइट वॉश कर दें, बट उनसे अगर कोई ये तो इतनी बड़ी गलती, उनसे छोटी छोटी गलतियां भी हो जाए ना, लाइक ओ शी आंसर्ड बैक और ओ शी वाज रूड और ओ चाहे वो जिस भी सिचुएशन में हो, ओके, फिर उन पे थप्पा लग जाता है. वो कपड़े अपनी मर्जी के पहने तो वो फास्ट हो जाती हैं, वो उनके क्राइम्स कोई वॉश नहीं करता. नो मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर. हाँ, ये इतनी फास्ट लड़कियां हैं, मतलब इतना मैंने सुना है, लाइक ओ गॉड भाई ये फास्ट क्या होता है. फास्ट लड़कियां. एक तो ना अनदर थिंग, मतलब मेकअप से लेकर, कपड़े से लेकर, स्माइल से लेकर, वर्ड से लेकर, हर चीज पुलिस हो जाती है. नो मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. True. Because there is this idea that a woman, and यहाँ पर तो God ये idea बहुत बेचा जाता है, and God forbid religion के नाम पे भी बेचा जाता है कि a woman at her core is a temptation. She's an object. She's sexual. ठीक है. And men seem to think that women are created for them. ये उनकी जो है क्लियरली ना बोलें भी तो ये उनकी बातों से पता चलता है, ये उनकी थिंकिंग है कि ओ शी इज़ अ टेम्पटेशन फॉर अ मैन बिकॉज शी इज़ सेक्शुअल, सो ओ हाइड हर बिकॉज इफ आई लुक एट हर आई विल बी टेम्पटेड. जैसे होता है ना, जब वो निर्भया रेप केस हुआ था, पता नहीं कौन सा रेप केस हुआ था, मैं भूल गई, तो एक पॉलिटिशियन था, उसने स्टेटमेंट दिया था, आई थिंक अखिलेश यादव था, उसने दिया था कि बॉयज़ विल बी बॉयज़. लड़के तो ऐसा करते ही हैं, लड़के नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लड़के तो करेंगे ही. और यहाँ पर जब वो मोटरवे केस हुआ था तो वो क्या CCPO था, क्या था वो, कि रात में वो करी क्या रही थी भाई, इतनी रात को क्या जरूरत थी सफर करने की और बच्चों को लेके जाने की अपने साथ. And then the PTI government, like people were like tell him to resign because we cannot have a person like this, and they were like भाई बयान के ऊपर कोई कैसे रेजिग्नेशन मांग सकता है. और ये these were not stupid lowly workers. This was the very educated Asad Umar who has been the CEO of this multinational, ऐसा who same is the India में finance minister, और वो आके कह रहे हैं कि भाई ये
कोई चीज़ गलत करे तो हम उस पर कह सकते हैं कि रेजिग्नेशन, तो बयान पे किसी से कैसे रिजाइन करवा सकते हैं? ऑल दीज डिस्गस्टिंग वेरी एजुकेटेड एंड पॉलिश्ड मेन हु हैव ऑल द सेम थिंकिंग. ऐसी सेम चीज इंडिया में भी हुई थी, हैदराबाद में हुई थी. एक डॉक्टर थी, शी वाज कमिंग बैक रात में, अपने वर्क प्लेस से घर जा रही थी, तो रात में ना उसका व्हीकल खराब हो गया. शी आस्क्ड फॉर हेल्प. तो 4 ट्रक ड्राइवर्स थे, शायद कुछ थे, दे रेप्ड हर एंड दे बर्न्ड हर अलाइव. दे बर्न्ड हर अलाइव. ठीक है. तो उसके बाद भी द क्वेश्चन वाज नॉट कि ठीक है, क्वेश्चन था कि चलो ठीक है पकड़ना है उनको, पर साथ में नैरेटिव ये भी था, इतनी रात में करी क्या रही थी, अकेले ट्रैवल क्यों कर रही थी हाईवे पे, क्या जरूरत थी इतनी रात में घर जाने की, सही टाइम पे निकलना चाहिए आपको. तो ये क्वेश्चंस तो हमेशा ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं. मतलब कि जब ये, और ऑल्सो वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक, जब ये निर्भया केस भी हुआ था ना, तभी भी यही क्वेश्चन था, बिकॉज शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ मूवी विद अ मेल फ्रेंड. ठीक है. एंड देन दे बोर्डेड अ बस. तो वो बस खाली थी, मतलब उसमें वो 4 जो उसके परपेट्रेटर्स थे वो थे, और बाकी पूरी बस खाली थी. ठीक है. तो दे हैड क्वेश्चंस लाइक इतनी रात में लड़के के साथ क्या कर रही थी, मूवी देख के क्यों आ रही थी इतनी रात में. ठीक है. फिर जब बस खाली थी तो बस में चढ़े ही क्यों, खाली ऐसे थोड़ी भरी वाली बस में चढ़ना चाहिए था. तो ऐसे क्वेश्चंस उठ के आते हैं. और एक मुझे बात समझ नहीं आती, ठीक है आपके दिमाग में गन भरी हुई है, ठीक है भरी हुई है, बट लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ के क्या हो जाएगा? जो होना था वो तो हो गया ना. हाउ आर दीज क्वेश्चंस हेल्पिंग? अपने दिमाग के अंदर अपने पास ही रखो ना. एंड दीज आर सिचुएशंस, देखो दीज आर सिचुएशंस वेयर क्लियरली देयर इज अ वेरी वेरी मतलब rape is violent in all situations, but this is like bhai jala bhi diya and all that. These are, you know, the violence level is ridiculous where nobody is questioning कि अच्छा rape हुआ भी था या नहीं हुआ था. They said everybody is accepting कि हाँ rape तो हुआ था, but oh you know maybe you were kind of complicit. You know what? So can you imagine हमारी culture में पता है इसके पीछे mindset क्या होता है when they are questioning, when they are asking these questions? ये नहीं होता है कि आगे से रेप होने बंद हो जाए. इट्स लाइक कि दूसरी लड़कियां जो है ना, उनको दे शुड बी सेफ. जो गलती उन्होंने करी थी, यू डोंट हैव टू मेक दो सेम मिस्टेक्स. दे वोंट वर्क इन दिस डायरेक्शन. दे वोंट क्वेश्चन कि ऐसा हुआ ही क्यों. नहीं, देयर ओनली सोल्यूशन इज कि हम बच के रह लेंगे, कि लड़कियों को सिखा देंगे कि तुम बच के रह लो. कि ये क्वेश्चन कि इतनी रात में अकेला आई क्यों रही थी लड़की ये नहीं कि तुम करना छोड़ दो. इट्स नॉट लाइक ओके यू स्टॉप बॉयज विल बी बॉयज, यू सेव योरसेल्फ बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू हैपन. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. ये तो होएगा. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अच्छा ठीक है. और क्या सेव कर लो. व्हेन निर्भया केस हैपेंड ना, उसके बाद जैसे पूरे दिल्ली में दे इम्प्लीमेंटेड अ फीमेल फोर्स. इट वाज कॉल्ड द निर्भया फोर्स. वो रात में पेट्रोलिंग वगैरह करती थी. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. बट ये तो यू आर टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक स्पेयर. व्हाट अबाउट द प्राइवेट स्पेयर? औरतें घर में सेफ है क्या? Most rape happens inside You your know homes. the perpetrators. So much sexual harassment happens Victims with people know you know, the your people. cousins, brothers, fathers, friends. ग्रैंडफादर्स. Oh God. तो उसका क्या मतलब? ठीक है, ये तो आपने सड़कों पे डाल दी पुलिस फोर्स, पर लेकिन घरों के अंदर क्या करते हो? देन यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज मैरिटल रेप. ओह आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. क्योंकि हमने जब सवाल किए ना, ये वी ओनली वांट कि सिम्टम कम हो जाए. ठीक है. हमारा हर चीज में जो है तरीका ये होता है कि सिम्टम कम कर दो, कॉज हमने नहीं देखना, बिकॉज दैट इज टू मच वर्क. और ऑल्सो बिकॉज अगर आपने कॉज देखना शुरू कर दिए तो ये जो आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को फजूल फेक वाला बूस्ट दिया हुआ है ना कि वो वी आर द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, और जो फ्रैजाइल ईगो है वो टूट जाएगी ना. वो जो फ्रैजाइल ईगो है वो टूट जाएगी. तो यू विल सी दैट योर कल्चर इज रेप कल्चर. Your culture is rape culture. The most important thing in Desi culture is marriage. है बचपन से शादियां प्लान होना शुरू हो जाती हैं, जहेज प्लान होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. एंड योर इंटायर मैरिज, योर इंटायर अरेंज मैरिड बुलशिट इज बेस्ड on objectification and sexualization of women. And it is very very socially acceptable to pimp out your daughter. I'm sorry. When you present your daughter with a trolley in front of strangers,
You know what they are, from her hair to her eyes to her feet, everything is sexualized and judged. I'm sorry, nobody comes, बात ही हम ये कहते हैं, हम बोलते भी नहीं है कि वो हम जो है किसी अरेंज मैरिज मीटिंग में जा रहे हैं या हम लड़की वालों से मिलने जा रहे हैं. आप लड़की देखने जा रहे हैं. आपकी तो लैंग्वेज बता रही है that you are there to look at an object. You are sexualizing women even in your very very amazing institution of family जिसकी स्टार्ट मैरिज होती है, वहाँ से आपने शुरू कर दिया लड़की को सेक्सुलाइज करना. तो वो बेसिस ही आपके इतने बड़े मजे के इंस्टीट्यूशन का सेक्सुलाइजेशन है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है. तो ऑब्वियसली योर होल कल्चर इज रेप कल्चर बिकॉज यू रेज योर डॉटर्स टू बी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स फॉर मेन. दैट इज व्हाट यू डू. तो फिर जब आप ये रेप कल्चर क्वेश्चन करते करते जाओगे तो आप तो अपने कोर ऑफ द कल्चर पे पहुंच जाओगे. नोबडी वांट्स टू क्वेश्चन दैट, नोबडी वांट्स टू क्वेश्चन द पेट्रियार्की, क्योंकि हर किसी के पावर हिल जाएंगे. तो व्हाट डू? फोर्स बिठा दो. इमरान खान का सोल्यूशन था कि रेपिस्ट को केमिकली कैस्ट्रेट कर दो. आई मीन व्हाट द हेल इज दैट गोइंग टू अचीव? आप पनिशमेंट पे पहुंच रहे हो, आप फिजिकल प्रिवेंशन पे पहुंच रहे हो. कॉज को कौन प्रिवेंट करेगा? इस चीज को कौन प्रिवेंट करेगा कि भाई रेप रिपोर्ट ही नहीं होता, रिपोर्ट ही नहीं होता, because it is such a stigma, such a shame, and so many and the times whole women process are blamed so much. And the whole process of reporting a rape, I remember I told you the term re-rape because the way they check it, the 2-finger test होता था, वो 2010 का मैंने पढ़ा था इंडिया में अक्रॉस ऑल द स्टेट्स बैन किया गया था, बट इट इज स्टिल प्रैक्टिस. 2-finger टेस्ट करते हुए इट इज नॉट इवन साइंटिफिकली प्रूवन दैट इट वर्क्स, बट लेकिन स्टिल इट इज डन. इसका पता है इसके पीछे करने का मोटिव क्या होता है? जस्ट टू चेक इफ द विक्टिम is sexually active or not, that when you're inserting 2 fingers, what is her reaction. That is the idea behind 2-finger test. उसका तो कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है कि इट इज गोइंग टू वर्क. और ठीक है, और फिर देन यू आर रिपोर्टिंग योर रेप. ऑल द पीपल यू विल एनकाउंटर इन द प्रोसेस, majority of them will be men. You'll go to the police station, you will find men. The judge will be men. Everybody would be आदमी. So how do you talk about something like this with all these men who have the same fucking mindset? How do you talk about? और उनको कोई है ही नहीं, सेंसिटाइजेशन ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में. बिकॉज दीज मैन, वो जज होगा, वो आदमी होगा, वो पुलिस फोर्स होगी, वो भी मेजोरिटी आदमी होंगे. दे ऑल्सो डोंट एनकाउंटर मैन ना, दे डोंट हैव वुमेन अराउंड देम. घर पे जाके अपनी खुद की बीवी बच्चे माँ वगैरह होंगे, बट लेकिन दे डोंट हैव वुमेन इनके प्रोफेशनल सर्कल्स में. दे डू नॉट नो हाउ टू डील विद वुमेन आउटसाइड देयर होम. तो यू कैन इमेजिन द वे दे टॉक टू विक्टिम्स. भाई जो जज होता है इस पूरी साइकिल में, जो जज होता है वो सबसे पढ़ा लिखा, ठीक है, सबसे एक्सपोजर वाला आदमी होता है. बाकी द लोअर डाउन यू गो, पुलिस देख लो, पुलिस तो पता है हमें कैसी होती है. वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम आवर पुलिस. पुलिस इज नॉट देयर फॉर आवर प्रोटेक्शन. दिस इज ट्रू अबाउट आवर पुलिस, राइट. तो जो जज होता है, पाकिस्तान का एक चीफ जस्टिस था, आई थिंक ये साकिब निसार था या शायद किसी ने, जो दिस इज द चीफ जस्टिस. सारी जुडिशरी का पढ़ा लिखा, सब पूरी उससे आया हुआ, सबसे जो है ना वो वाला जज है, ये सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे अचीवमेंट्स वाला जज, ठीक है ना. वो जज ने एक बार किसी स्पीच में कहा था कि अ स्पीच शुड बी लाइक अ वुमेन स्कर्ट, not so long that it is uninteresting and not so short that it is some kind of very sexist, very sexualized joke. ये उसने किसी रेप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था. अब अगर आदमी पढ़े लिखे वाले आपके ऐसे ही who are sitting on the top of your judicial pyramid, can you imagine the shit that is down there? जहाँ देखते ही आप औरतों को as sexual objects, so how, what kind of sensitization are you expecting when she is coming in a rape case? Exactly. None. Rape is not going to stop because you chemically castrate rapists, ठीक है. It is going to lessen when you address rape culture, which you don't want to. True. And also when you're reporting rape, और जो ये fear of judgment होता है, because you have grown up with this idea that people are constantly judging you and then you're fearful of that. So when you're reporting your case, एक ना मैंने एक ऐसे पढ़ा था, प्रमोद नायर का था, तो उसने ही वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा
and the trauma narratives we have. तो उसने तो एक post colonial context में लिखा था कि all these colonized countries they have a lot of trauma narratives now. They have a lot of written articles to deal with their trauma, to tell others about their trauma. तो उसने तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी, बट लेकिन वो बात मुझे बहुत सही लगी. जब वो विक्टिम अपना खुद का नैरेटिव सुना रहा होता है ना, तो देयर इज ऑलवेज दिस फियर ऑफ जजमेंट कि ऑल द पीपल आउट देयर हु आर लिसनिंग मी दे विल जज मी. ठीक है, तो एक लड़के के पर्सपेक्टिव से देखो, यू आर ऑलरेडी क्वेश्चनिंग द गर्ल ना, जो पहले के आपके इंसिडेंट्स रह चुके हैं, आपने पैटर्न देखा है उसमें कि दिल क्वेश्चन द गर्ल, इतनी रात में वहाँ करी क्या रही थी, तुमने पहन क्या रखा, तो लड़के के साथ क्यों थी, फलाना questions. So there is always this fear of judgment. So when victims are reporting their stories ना, they tend to hide these details because उनको पता है they will be judged. ठीक है, तो एक तरीके से वो एक बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्ट सी हो जाती है कि जो रियल विक्टिम स्टोरी क्या है और जो प्रेजेंटेड है विक्टिम के मुंह से ही वो रियल स्टोरी क्या है. और दिस गैप बिटवीन द रियल स्टोरी एंड द प्रेजेंटेड विक्टिम स्टोरी कैन ओनली बी चेंज्ड जब आप नैरेटिव सोसाइटी बदलोगे. So when he talked about the narrative society, he was talking about the other जनता who are doing this stupid questioning process. जब तक वो एक open mind से वो story को नहीं सुनेंगे, victims will keep falling into that trap because उनको पता है ना, अगर वो real story बताएंगे they won't get real help. उनकी बातें तो कोई सुनेगा नहीं ना, without judgment तो कोई नहीं सुनेगा, सब यही बोलेंगे. एंड ऑल्सो दिस डजंट वर्क ऑन अ वेरी, मतलब अब लोगों को ये दिस डजंट वर्क वेरी कॉन्शियसली कि आप बैठ के ये प्लान करते हैं. दिस हैपेंस वेरी सबकॉन्शियसली वेर यू हैव टू मेक योरसेल्फ द विक्टिम. We have been conditioned that you have to make yourself the system. This is the story you tell yourself, otherwise you yourself will not believe that you are the victim. Because हमारे यहाँ परफेक्ट विक्टिम होना चाहिए. अरे भाई परफेक्ट विक्टिम्स को भी हम क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई रात को क्या कर रही थी या लड़के के साथ क्या कर रही थी. तो अब ये जो एनाटमी ऑफ अ स्कैंडल वाला सिचुएशन था, आई एम श्योर ऐसे केसेस तो हमें पता भी नहीं होते होंगे. True. हमें पता भी नहीं होते होंगे. एंड आई एम श्योर देयर आर सो मेनी वुमेन हु हैव गॉन थ्रू मैरिटल रेप जिन्होंने खुद भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि ओ दिस वाज नॉट अ सिचुएशन आई गेव कंसेंट, यू नो, because they don't feel like they have the right to give consent. जब इतने extreme cases में हम जो है blame कर देते हैं, तो in a situation where a girl is sexually involved, ठीक है, या a girl is married, तो वहाँ तो फिर तो मतलब वहाँ तो केस खुलते ही खत्म हो जाता है ना, क्योंकि हम तो 2 finger टेस्ट कर रहे हैं, यानी हमें लग रहा है कि अगर वर्जिन है या नहीं है उससे कहानी स्टार्ट करिए. बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन एट ऑल. द क्वेश्चन इज कि जो भी हुआ, जब उसने पहले सेक्सुअली एक्टिव है, नहीं है, वर्जिन है, डिवोर्स है, व्हाटएवर द फक शी इज, भले she was in a relationship with him, but अगर उस दिन she was not giving consent, तो she was not giving consent. Yes, in that situation if she was not giving consent, she was not giving consent. हाँ, ये मेरा चार्ज सुबह दे दी, शाम को नहीं दी, 2 घंटा पहले दी, 2 घंटे बाद नहीं दी. हाँ, doesn't matter. ऑल्सो ये जो कहानी है जो मैं बता रही हूँ ना, रियल विक्टिम और द रिप्रेजेंटेड विक्टिम, इसके डाइकोटमी तो मैं एनाटमी ऑफ स्कैंडल में भी देख सकती हूँ. जो उनका कैमरा टेक्निक है कि जब वो अपनी कहानी बता रही होती है तो जिस तरीके से शी एंटर्स द फ्रेम, और जब वो अपनी कहानी बताता है द वे ही एंटर्स द फ्रेम, जब वो अपना एक तो जब वो लिफ्ट सीन दोनों डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो कि वो जज उससे पूछती है ना दोनों के लॉयर्स के, हाउ डिड यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, और दोनों की स्टोरीज कितनी the outline तो सेम होती है, बट लेकिन the way it manifested वो कितना फर्क होता है. He held the door or you held the door or वो you told her to डिटेल्स होती है, मतलब वो the whole manifestation of it is for very example, different. हो सकता है that he was not the one who invited in her in the lift. She was the one who invited exactly. in the lift. That doesn't mean that she gave consent, but that makes her worse off. And also this show is a very good example of how difficult it is to legally prove that prove rape, ठीक है, legally prove harassment. बड़े आराम से ना ये सारे जो हैं मिसोजिनिस्ट माइंड के लोग, ठीक है ना, सारा साल स्पेशली यहाँ पर ये इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है, सारे सिचुएशंस में वो कहेंगे जज बेकार हैं, जुडिशरी बेकार है, लीगल सिस्टम बेकार है, कोर्ट से दूर रहो, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है ना. जैसे ही कोई हरासमेंट का एलिगेशन लगा देगा, उनको लगेगा ओ कोर्ट्स आर द बीकन ऑफ, एकदम सही है, ठीक है, जाके प्रूव करके दिखा दो तो हम मान जाएंगे. डूड, यहाँ तो जो चीज़ें प्रूव हो सकती हैं नॉर्मली वो नहीं होती, ठीक है, या जो नहीं होनी चाहिए वो प्रूव हो के लोगों को गलत सजाएं मिल जाती हैं. तो एक सिचुएशन जो वैसे ही इतने
कंपेरेटिवली इंग्लैंड का लीगल सिस्टम इज़ मच मोर डेवलप्ड, ठीक है, मच हैज़ मच लेस करप्शन कंपेयर टू आर्स, बहुत पुराना लीगल सिस्टम है. उधर जाकर मतलब उन हर किस्म के लीगल सिस्टम्स में ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई हाउ कैन वी मेक रिपोर्टिंग एंड प्रूविंग ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट ईजियर, बिकॉज इतने बिकॉज इट हैपन्स इन प्राइवेट मोस्ट ऑफ द टाइम. इट्स यू वर्सेस योर वर्ड अगेंस्ट हर वर्ड. और एक क्रिमिनल केस में अगर इस किस्म की सिचुएशन है योर वर्ड अगेंस्ट हर वर्ड, पर्सन विल नॉट बी कन्विक्टेड बिकॉज यू नीड दैट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ. जब इनका भी चल रहा था तो क्वेश्चंस लाइक कि ठीक है वेयर डिड ही कीप हिज हैंड, क्या चालू हुआ था, चलो ठीक है, तो वो बोलते कि हिज हैंड वाज ऑन माय एस, हिज हैंड वाज ऑन माय ब्रेस्ट, ठीक है, था, ये था, ठीक है, चालू हुआ था, शी वांटेड टू डू इट, हाफ ए डे, देन हाफ ए शी डिडंट वांट टू, देन शी सेड नो. तो उसने नहीं सुनी ना, बट लेकिन पिक क्या किया जाएगा, यही पिक किया जाएगा. बट ही हैड हिज हैंड ऑन योर एस इन अ पब्लिक लिफ्ट, he had his hand on your breast, so why did you even allow that? तो गलती तो आप ही कर रहे हो. 2 मिनट में चीज होती है, 2 मिनट में, so fast that you are not able to get your bearings also. Because that is how a love making process is supposed to be ना. तुम एक love making process को जैसे you can't break it down कि अच्छा पहला स्टेप ये था उसमें 1 घंटा लगा, दूसरा स्टेप ये था उसमें 3 घंटा लगा. It is supposed to be a very, I don't know, passionate activity. So you cannot keep track of things कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था. ठीक है, आपने you started it off, you wanted to do it, halfway you didn't want to, you said no. But when you're talking about it later, you can't go back to the first step and question कि अच्छा वही क्यों चालू किया था उस दिन, मतलब कि वही क्यों हुआ था फिर. Why did you allow even that? You can't break it down like that. You can't break it down and like the that. problem here with consent, the biggest problem I saw was कि वो जो बंदा है वो चाह ही नहीं रहा था सोचना. Like we saw how entitled he is ना, उसके दिमाग में ये question ही नहीं था कि मैं सुनूं या मैं attentive रहूं. He was not there connecting with the girl in that situation at all. He was doing whatever the hell he wanted to do because in his mind this is not a question at all. Because कभी उस चीज की जरूरत महसूस ही नहीं हुई. Because इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है. जब वो पहली बार उसको केट को रेप करता है, इट हैपेंस इन अ फ्रीकिंग कॉरिडोर विद इन 5 minutes. I mean, and who is doing that? Like, who is doing it that? happens within 5 minutes. तो वो तो समझता नहीं ना कि उसको सोचने की जरूरत है. वो तो उसने कभी नहीं सोचा. उसको he wanted sex that day. He was drunk. He was, I don't know, horny, whatever. He wanted sex. वो करके निकल गया ना. तो और उसने एक सेकंड बाद में भी नहीं सोचा कि ये हुआ क्या, या ओ मे बी दिस वाज नॉट नॉर्मल, और मे बी अगर वो हिली हुई थी तो मे बी आई शुड चेक ऑन हर. लाइक उसके एक बार पूछता है वो, उसने कभी कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस ही नहीं किए कि उसे ना रुक के सोचना पड़े कि मैं कर क्या रहा हूँ. कभी जरूरत है एक और चीज मेरे दिमाग में चीज imagine growing up in a household. Imagine growing up in a household where you are taught कि अच्छा ठीक है, you can do anything you want, no matter how you do it. ठीक है, तुम्हें मोनोपोली में जीतना है, तुमने खूब झूठ बोले, तुम्हें कोई भी गेम जीतना है, तुमने खूब झूठ बोले. Imagine growing up in a household like that where these things are praised. So obviously you grow up to be a shitty human. Obviously, and then you go to college and you do all kinds of ridiculous shit. Oh my god, it is so disgusting what these people are doing. मतलब इनकी जिंदगी में कोई थ्रिल नहीं है क्योंकि इनको सब कुछ मिल जाता है. तो शैम्पेन्स गिरा रहे हैं और वेट्रेस को हरास कर रहे हैं, और एंड इट्स नॉट लाइक ओ, मतलब जब ये चीज़ें रिवील भी हो रही हैं एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो देर लाइक शव असाइड कि अच्छा ठीक है, यू नो, बॉयज विल बी बॉयज काइंड ऑफ सिचुएशन. अरे ये तो छोटे थे, ये तो पागल थे, ये तो करते थे, ठीक है ना, नो कॉन्सिक्वेंसेज एट ऑल. एक बंदे को चरस देके आपने एक बंदा मार देते हैं, उसके भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होते, मर गया, यू आर नॉट आंसरेबल इवन फॉर दैट. निकल लिए आप तो करके. I mean, what I don't understand is that आपने चलो छुपाना था, आपने छुपा लिया, ठीक है, but how is that not weighing on your conscious your whole life? How does that not make you question yourself and change yourself कि भाई मेरे एक्शन से कोई मर गया, चाहे जितना भी indirectly, like why, but they didn't question because उनको कभी किसी ने consequences face ही नहीं कराए ना. तो फिर जब वो when they go around in all their relationships, उनके लिए कोई consequence, कोई सामने वाले का सोचना, what actions, what impact my action has on the other,
डोंट गिव अ शिट एज लॉन्ग एज दे. और है कितना अच्छा यूँ मिनिस्टर वाइज के ओ मिनिस्टर वाइज जो है मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हेल्प कर रहा हूँ एंड वो तो he has a ऑल ऑफ perfect दिस इज image अबाउट ना. देम. ओ आई एम अ गुड पर्सन एंड आई एम दिस इज जस्ट ऑल अबाउट देम. दिस इज ऑल देयर ईगो. He has all the And there is tags no working in questioning. his favor. He is a very good politician. He is a very good family man. He is a responsible father. तो वो image तो एकदम perfect है ही ना. And he is being praised for that. Working for the constituents. Dude. कौन question करेगा उसको? नहीं, कोई भी नहीं. और सबसे तो और एक और what चीज blew me मेरे away- दिमाग में आई थी. what blew me away हाँ? was कि लास्ट तक भी उसको इतना सा भी रियलाइजेशन नहीं होता है कि उसने गलत करा है. उसको लास्ट तक यही लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, कि ऐसा ही तो I mean, होता he है. doesn't उसको even- लास्ट तक भी उसका जो आउटबर्स्ट होता है लास्ट एपिसोड में, जो वो चीखता है अपनी बीवी पे कि नहीं मैं भूल गई एग्जैक्टली उसके वर्ड्स भूल गई, बट उसको हल्का सा भी रियलाइजेशन नहीं होता है. वो मानता नहीं कि मैंने गलत किया था. उसके हिसाब से ऐसा ही तो होता है दैट शी वाज प्लेइंग हार्ड टू गेट. पहले भी तो करती थी. और फिर एक स्टेटमेंट ये भी बोलता है वो कि ना उसको बड़ा मजा आता था ये थ्रिलिंग चीजें करने में, कि हम पहले भी ऑफिस डेस्क में करते थे व्हेन वी न्यू देयर आर पीपल आउटसाइड, तो बड़ा थ्रिल आता था उसको पहले भी इन सब चीजें करने में. तो उस दिन क्या प्रॉब्लम थी? तो he can't wrap या his वो उसकी mind lawyer पूछती around है. the fact he can't wrap his mind around the fact कि somebody can say no to him. He can't wrap his mind around that. इवन अरे ये तो छोड़ो, इस सिचुएशन में तो नो कहना छोड़ो, उससे ये भी नहीं बर्दाश्त होता जब अब उसके ट्रायल के एक दिन उसकी वाइफ बीवी नहीं दिस आती. इज टू मच फॉर मी. ऑफ कोर्स इट्स टू मच फॉर हर. She is sitting there listening to graphic details of her husband's Of her love sexual affair. encounter, you know, with somebody he was having an affair, और वो नहीं आती एक दिन, and he has the audacity. He has the audacity to say तुम क्यों नहीं आई? It wasn't a good look. Oh my God, bro, तुमने एक बार सॉरी भी नहीं कहा बैठ के. तुम एक बार you haven't fallen to your knees and say oh shit I fucked up, stop, please don't leave me. उसे पता है she won't leave him. ये डर And तो he है doesn't ही ना even कि say she will leave. हाँ, ये डर तो है ही नहीं कि she will leave. वो तो पता ही कि कहाँ जाएगी. doesn't give a fuck. Does not say, he's not apologetic. जिस दिन वो ना गुस्से में उसको कुछ सुना रही होती है, I don't remember वो क्या कह रही होती है, वो कहते हैं okay if you're going to be nasty I'm going. मतलब उसमें भी उसका like he has no space for her anger also. भाई तू अफेयर करके आ गया है, मतलब मुझे भी लगा था possibly कि rape क्या involved nasty है. है. You have this entitlement that my family has to stand by me ताकि मेरी image सही रहे while I am going to trial. और having And the this man audacity doesn't to say even that. और उधर जाके ट्रायल में वो चीज़ें कहता है जो अपनी बीवी को बताता भी नहीं है कि अच्छा दिस इज हाउ, मतलब इवन इफ दिस इज वट एवर ही सेइंग ना, जाके कहते हैं ओ आई थिंक आई वाज आल्सो फॉलोइंग इन लव विथ हर वगैरह, जो भी जूरी को ट्विस्ट करने के लिए. डजंट इवन गिव हर अ हेड्स अप दैट आई विल से थिंग्स जो स्टोरी मैंने तुमको बताई ना कि ओ इट वाज नथिंग, इट वाज मीनिंगलेस, ब्ला ब्ला, उससे अलग जाके मैं कहूँगा ठीक है, एंड मे बी तुम्हें शॉक लगे. डजंट गिव अ शिट अबाउट हर. फैमिली मैन एंड आई वांट टू प्रोटेक्ट एंड अगर फ्यूचर में तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है, बट हिज एक्शंस आर नॉट लाइक दैट एट ऑल. goes and says whatever kind of shit he wants to say, doesn't think for a second कि अरे ऊपर सुन रही होगी वो तो उसको क्या इमोशनल इफेक्ट पड़ेगा. और जब वो किसी फॉर्म में उसका गुस्सा आ रहा है पैसिव अग्रेसिवली या कह रहे ओ यू जस्ट बीइंग नास्टी, आई एम nasty having her. और उसकी माँ, उसके लड़के की माँ भी मुझे बहुत I ही cannot annoy bear है. him. उस लड़के की माँ भी मुझे बहुत ही बहुत अनॉय करती है कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, yes. ऐसे ही करेंगे. उसका भी कंक्लूजन तो यही निकलता है उसकी बातों का कि उसको जो चाहिए था वो हक, अपने हक का छीन के ले लेता है टाइप्स वाला. That was what his mother wanted to say ना. And और one भी thing कुछ जो चीजें मेरे बोलती है, दिमाग में उसको आ मैं रही भूल थी गई. when we were talking about, when you were saying ना कि कोर्ट में बहुत ही डिटेल में वो हो रहा होता है कि अच्छा दिस ही केप्ट हर हैंड ऑन हर बम एंड ऑन हर ब्रेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना. तो ये हो रहा है एक इंग्लिश कोर्ट में. Recounting this trauma for any victim is going to be so difficult. वो चाहे जिस मुल्क में भी रहे, to explain the details and to live mentally the same trauma again. ठीक है ना. But imagine what happens in how is this happening in a desi court? Desi court, true. वहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं है कि ओ दिस वाज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप बट दिस वाज नॉट अ कंसेंशुअल इनकाउंटर. इसकी कोई स्पेस ही नहीं है ना. What are you going to say?
कि this is how our relationship, can you discuss sex in any way or form in a desi court when you absolutely need to because there was an assault? No, you cannot. देर इज़ नो स्पेस, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में भी ये स्पेस नहीं है कि भाई अच्छा जहाँ पर एक एक्चुअल कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप है, एक्सेप्टेड ह्यूमन नीड्स हैं, हम तो अपने बच्चों को हेल्दी तरीके से वो भी नहीं सिखाते। हम तो उनकी बॉडीज़ के बारे में उनको नहीं सिखाते, क्योंकि हम जो है इतने सेक्स ऑब्सेस्ड और सेक्स से डरते हैं दैट वी थिंक कि भाई अगर सेक्स एजुकेशन हो रही है एक छोटे बच्चे की, विच मीन्स टीचिंग देम अबाउट देयर बॉडी एंड देयर बॉडीली चेंजेस एंड देयर एनाटॉमी एंड एवरीथिंग, इज टॉकिंग अबाउट बस सेक्स एजुकेशन, मतलब सेक्स सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब एक्चुअली ज़रूरत भी है सेक्स सिखाने की मैरिज में या किसी भी सिचुएशन में, तो आप तो लाइक यू कैन नॉट एब्सोल्युटली कैन नॉट टॉक अबाउट थिंग्स विच आर अ रियलिटी, जिनकी वजह से आपकी पॉपुलेशन बूम पे बूम किए जा रही है, जो सच्चाई है। यू डू नॉट वॉन्ट टू सी दैट सच्चाई एट ऑल। तो जब आप उधर एक कॉन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे, तो जब एक रेप की बात आ जाती है जहाँ पर इतनी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन करना ज़रूरी है, तो वो कहाँ से आओगे? मतलब वी आर लाइक एट जीरो, वी आर इन माइनस इन दिस सिचुएशन एंड yeah, we just want to hide all this stuff. We do not want to address it at all. और फिर जब जो है इतना सारा रेप के केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए, सेक्सुअल हरासमेंट के रिपोर्ट होने शुरू हो गए, सब कुछ, तो क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है जाके टीवी पे कह देता है कि भाई अगर दुनिया में मीडिया में पॉर्न होगा और पॉर्न एक्सेसिबल होगा और औरतें छोटे कपड़े पहनेंगी और फिर तो मेन तो इंटाइस होंगे। I'm so tired of this narrative. Who tells कि ओ मैं तो एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हूँ। मैं तो थक गई। Have you read a book? Have you read some research about what rape is and how it is not a crime about, it is much less a crime about sex and much more a crime about power. And इसको तोड़ने के लिए आपने पावर डायनामिक्स तोड़ने, इसको तोड़ने के लिए आपने रेप कल्चर तो कुछ पढ़ा नहीं है क्या कभी? You are the fucking prime minister of the country and you are so comfortable saying all these things with international reporter को इस किस्म के इंटरव्यू दे दिए भाई। This is how clueless and ridiculous men are. अगर ढंग से सेक्स एजुकेशन होगी, if people will be given the liberty to, I don't know, watch porn, talk about their sexual desires, talk about their bodily needs, कभी इस तरीके से देखा, then you won't have these issues. Because people can talk about their bodily needs in public. इतना suppression है हर sexual desire का, people don't know how to talk about it, तो वो गलत तरीके से इतना suppression है कि suppression हमारे अंदर भी है, suppression हमारे अंदर भी है, like हम भी accept नहीं करते। There is so much shame that we don't want to accept our own needs. अपने दिमाग के अंदर the most private space यहाँ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, तो यहाँ से रिप्रेशन शुरू हो रही है, तो किस लेवल तक वो रिप्रेशन जा रही है, और फिर जब उसका स्पिल ओवर आ रहा है तो आपको समझ ही नहीं आ रही, फिर आप जो है औरतों को कह रहे कि ओ ये औरत एग्जिस्ट ही क्यों करती है, लाइक ये तो है ही सेक्सुअल, इसको देख के तो हमारा दिल ही होगा। व्हाट, पता नहीं पॉर्न बैन कर देंगे, ये कर देंगे, पॉर्न नहीं देखने देंगे, भाई देखने दो, let people do it, let people encounter their sexual needs, their bodily desires. Yeah, don't it's their let own them private suppress space. it. It's not like you don't have those people, you don't, and it's not like हम बैन करते तो उससे कोई फर्क पड़ता है, you कक फर्क नहीं पड़ता, वो ही देखते exactly. हैं। पाकिस्तान में जब वो कौन सा है वो 50 Shades of Grey की अगर रिलीज हो जाए तो वो टॉप 10 में आ रही होती है, ठीक है, व्यूड चीजों में। Not even porn, चलो ठीक है, वो तो फन है, देख लो। हाँ, exactly, anything with a sexual वो हाई व्यूअर उसमें आ रही होती है। This is the reality. यार मेरे को ना से एक चीज याद आ गई, और मुझे ना बहुत इस चीज का ना गुस्सा है मेरे अंदर, and I'm going to use this platform to trash talk those, I don't even remember who those people were. 8th क्लास में, ठीक है, 8th क्लास में हमारी ना वैल्यू एजुकेशन की बुक होती थी, ठीक है, तो उसमें ना कोई एक चैप्टर था वैल्यू एजुकेशन में जहाँ पे इट वाज टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज, सेफ सेक्स, दिस आइडिया ऑफ टीनेज रिलेशनशिप्स वगैरह। मैं एग्जैक्टली भूल भी गई क्या था, बट इट वाज अराउंड दीज लाइन्स, ठीक है। आई वॉज अ रीडर, मैं बचपन से बहुत रीडिंग करती थी, तो 8th क्लास हमारा कोई फ्री पीरियड था या पता नहीं क्या था, तो मैंने ना पूरी वैल्यू एजुकेशन की बुक चाट रखी थी,
ठीक है, बिकॉज मैं पहले ही पढ़ लेती थी सारे चैप्टर्स, ठीक है. तो मैंने वो चैप्टर पढ़ा था, मुझे बहुत सही लगा था, तो आई वेंट बैक टू द चैप्टर एंड आई वाज रीडिंग इट इन क्लास. ठीक है, कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर चैप्टर्स लाइक दीज वर स्किप्ड. ठीक है, तो आई वाज रीडिंग दैट क्लास. 3 boys from my class, they saw me reading that chapter. They freaking went to my class teacher and they complained about me कि मैम आशिमा वो चैप्टर पढ़ रही है. And this freaking class teacher, she scolded me for reading that chapter. It's This in shit your happened with me. textbook. And I was It's scolded in for your reading. textbook. I was scolded for reading that chapter in class. मुझे इस बात का इतना गुस्सा है ना. एंड मुझे याद आ गया कौन है these 3 guys. I can remember these guys now. अब मुझे इतना गुस्सा आया था उस टाइम जब आई वॉज वेरी यंग. ठीक है, मैं 8th क्लास में थी. और तुम्हें क्या लगता है ये 8th ग्रेड के हॉर्नी बॉयज आपस में क्या बातें कर रहे होंगे जो तुम्हारी कंप्लेन लगा के आ गए हैं? इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था. बस मुझे ये पता था कि आई एम डूइंग नथिंग रॉन्ग. कि उनके पास क्या थी, मतलब व्हाट पावर डू दे फकिंग हैव दैट दे कैन कंप्लेन अबाउट मी. एंड द वर्स्ट पार्ट वाज वो क्लास टीचर, शी स्कॉल्डेड मी फॉर दैट. ठीक है, बच्चे तो चूतिए थे, उन्होंने जो करा वो तो करा ही, बट आई वाज स्कॉल्डेड फॉर रीडिंग दैट फकिंग चैप्टर एंड आई वाज रीडिंग It's in your textbook. And The school has mandated the textbook. And मैं इससे better चीज़ है, I won't call them shit, but I was reading other things back home already. It was not like that my parents were coming and policing what I was reading. Then what fucking power that class teacher had over me that she scolded me for reading that chapter. And those 3 fucking boys, they complained about me. It's not like they didn't read that chapter. The only problem my class teacher had was कि उन्हें पता कैसे चला कि उस चैप्टर की कंप्लेन हो सकती है? The only problem was because I was reading that chapter in class. And वो हमारे टेक्स्ट बुक में था. स्कूल में बच्चे टेक्स्ट बुक ला रहे, भाई आपने मैंडेट किया. व्हाट द फक इज योर प्रॉब्लम? गॉड, मुझे ना आज तो इमेजिन कि एक बच्चा अपने प्राइवेट टाइम में एक स्कूल मैंडेटेड टेक्स्ट बुक से अपने आप को एजुकेट कर रहा है, उसमें उसको पब्लिकली शेम किया जा रहा है. मैं तो उस चैप्टर पे वो दया करती कि चल भाई तेरे को दूसरी बार पढ़ लेती हूँ मैं. आई वॉज ऑलरेडी फकिंग एजुकेटेड. मेरे पास अपने खुद की अच्छी तरीके से सेक्स एजुकेशन थी मेरे पास. आई वॉज ऑलरेडी फकिंग एजुकेटेड. आई वॉज डूइंग दैट फकिंग चैप्टर अ फेवर बाय रीडिंग इट. मेरे अंदर का रिप्रेस गुस्सा निकल रहा है आज. What the fuck man, मुझे और गुस्सा आ रहा है. नहीं, of course you should be mad. क्यों याद आ गया ये. मैं आज ही मैसेज करूंगी उन तीनों को. एक की शादी हो गई उसमें से, उसकी बीवी को मैसेज करती हूँ. बिकॉज़ मनुष्य इंसान से शादी हो गई. मैसेज करियो, उसको मैसेज करो. उसको मैसेज करके क्या बोलूँ? मैंने हंसने में दीवार में सर मार लिया. God, I'm so pissed right now. हम तो स्कूल मैंडेटेड चैप्टर्स पढ़ने पर बच्चों को पब्लिकली शेम कर रहे हैं, तो फिर मतलब समथिंग सिमिलर. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? समथिंग सिमिलर हैपेंड. एक और चीज हुई थी, उसकी ज्यादा डिटेल्स तो मैं नहीं बताऊंगी, बट लेटर. हैव यू हर्ड अबाउट दैट बुक 11 Minutes बाय पॉल? I don't even know how to pronounce his surname right. Paul Coelho. Paul Coelho. I say Coelho in my head. I have no idea. I don't even know how to that name. तो उसकी एक बुक आई थी, उस बुक का नाम था 11 Minutes. This 11 Minutes it was about a girl who was exploring her sexual identity, and she's a prostitute, and she meets a man, and then this man makes her explore the BDSM side of this like the BDSM side of her sexuality. ठीक है, तो ये बुक मैंने आई वॉज रीडिंग इट काफ़ी. इट वॉज अ वेरी नाइस बुक. मैं पढ़ रही थी और मेरी एक फ्रेंड ने बोरो करी थी मुझसे बुक पढ़ने के लिए. मैंने उसको दे दी. दिस फ्रेंड शी वॉज रीडिंग द बुक अपने घर पे. उसकी मम्मी ने पढ़ लिया. पीछे का वो नहीं होता ब्लर्ब, उसकी मम्मी ने वो पढ़ लिया. तो उसकी मम्मी ने गुस्से में ना मेरी किताब डस्टबिन में फेंक दी. एंड हर मदर कॉल्ड माई मदर सेइंग, आपको पता है आपकी बेटी क्या पढ़ती है? How old were you? Oh my, what? 11th standard. And my mom was like, yeah, I know.
तो फिर आंटी ने फ़ोन रख दिया. फिर ना वो फ्रेंड मुझसे आके पूछे कि यार तेरी किताब तो फेंक दी मेरी मम्मी ने. मैं आई डोंट गिव अ फक, मेरी किताब मुझे वापस नहीं ला के दे. And then she got me a new book. Or obviously you owe me a fucking book. Your mother threw my book in that fucking dustbin. मतलब किताब की तौहीन कौन करता है ऐसे? She threw it in a dustbin. ऐसे दो इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि in context to what I read. And my mom was like, yeah, I know what But you it's a do. good thing that your mother didn't. Matlab, I can imagine a lot Obviously. of parents who would get to know this and would actually go and shout at their kids and then start Yeah. policing their Yeah. reading, Yeah. you know, because that happens. चलो, it was a good episode we had. It ended very हाँ, गुस्से के साथ and गुस्सा गुस्से होना के चाहिए. साथ. गुस्सा है हमें, of course. रुको मैं से DM करूँगी उन Ridiculous. बच्चों को मैं. Please let me know what happens after your उनकी- DM and what you उनकी- intend to DM. Like, what are you उनकी even vibes- going to say? उनकी Go vibes को watch the DM last करके 10 minutes of my. Why don't you tell them to watch the? शायद Send them the इससे link और viewers say बढ़ इसमें जाएंगे. तुम्हारी बात की है मैंने, जाके देखो. शायद इससे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे अपने. हाँ, of course. व्यूअरशिप बढ़ाने का एक तरीका है कि आप लोगों की पुरानी कहानियां लाएं, इधर सुनाएं उनको पब्लिक में, उनको कहें जाके देखो मैंने तुम्हें पॉपुलर कर दिया. I'm not even like sorry about mentioning these Of course, why people. would you be? Fucking boys. कितने बेवकूफ होते हैं Anyways, यार. I think we had a good conversation. I think we We really should, yeah. dissected the show in detail Sure, and we had this true. conversation about consent. True. Uh, Let us know how you liked So- it, and please interact with us in the comment section. We would like to know your opinions, and I'm sure you must be having your own stories around consent. If not you, your friends must be having stories around consent, this idea of consent, the thin line between consent. So we would like to know about those stories. हाँ, the conversation अभी तो हमने थोड़ी सी बात की. I think the conversation is very very wide. Very, It very covers wide. all kinds of situations. I mean, बच्चे होते हैं ना छोटे, उसकी Maybe we conversation can have, देखिए, like, who they can more allow to episodes. touch them, who they cannot allow them to touch. Good touch, bad तो touch. बहुत बड़ी Yep. conversation है. Please let us know. We can have more talk about episodes it. on this idea of consent. Yeah. We should. Yeah, different angles से we can talk about Angles it, say, definitely. yep. Okay, guys, remember, like, share, subscribe. Hey, रुको, I want to do this. Like, Bye. share, subscribe. अब तुम यहाँ पे like, यहाँ पे share, यहाँ पे subscribe डाल देना. नहीं, ये मैं नहीं करूँगी. मैं नहीं एक्स्ट्रा काम कर रही तुम्हारे लिए. Okay, bye bye. Okay, bye.